Hello students, now welcome to the Rashmi Singh classes. Today's topic is understanding secularism. This is the chapter of civics, first part of class 8th ka. But before we discuss about the secularism, I want to tell you some examples in which peoples were discriminated in the society. Clear? If we turn the pages of history, we'll get so many examples. So let's have a look. Jews were discriminated in Germany at the time of Hitler. Jews were persecuted and killed. Israel was the state of Jews and Israel treats its own Muslims and Christians quite badly. It means जो Christian और Muslims थे, they were discriminated badly in Israel because they were in minority. Saudi Arabia, everybody knows that it is a Islamic country. Here the non-Muslims were not allowed to build temple or church, nor can non-Muslims gather in a public place for prayer. Means non-Muslims are not allowed to build temple or church. वहाँ पे non-Muslims church और temple गुरुद्वारा नहीं बना सकते because ये तो एक Islamic state है और वो किसी भी public place पे assemble नहीं हो सकते for prayer. अच्छा, what do we understand all these three examples? क्या हमें समझ में आया इन 3 examples से? इसमें हमें ये समझ में आया कि the people were discriminated on the basis of their religion. They belong to the different religion, that's why they discriminated. Clear? Now listen. Because one religious group is supported by the state. एक religious group को state का support मिल जाता है तो वो powerful हो जाता है. जैसे Saudi Arabia is a Islamic country, so the Muslim community they gets the support of state. मुस्लिम कम्युनिटी को स्टेट का सपोर्ट मिल गया है, दैट्स वाई दे आर इन द पावर एंड दे डिस्क्रिमिनेट द अदर रिलीजियस कम्युनिटी. क्लियर? तो इसका क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अगर किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को स्टेट का सपोर्ट ना मिले, स्टेट को और रिलीजन को सेपरेट कर दें, तो कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा. Yes, this is the essence of secularism. इसी में essence है secularism का. Secularism refers to the separation of religion from the state. Means state से religion को separate कर देना is called secularism. It means there is no state religion. State का कोई अपना religion नहीं है और you can say the state do not sponsor any religion. एवरी रिलीजन इज इक्वली रिस्पेक्टेड. किसी को कोई ये नहीं कि माइनॉरिटी का पारसीज हैं तो उनके रिलीजन को कम वेटेज मिलेगा. नो, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वली रिस्पेक्टेड इन अ सेक्युलर कंट्री. क्लियर? एंड इन इंडिया, ठीक है, द सिटीजन्स गिव द राइट टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को लिबर्टी दी हुई है कि वो अपने रिलीजन के साथ रह सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं. क्लियर? तो सेक्युलरिज्म क्लियर समझ में आ गया सबको? इट रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. नाउ द क्वेश्चन, व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट? नाउ कम हियर. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट to separate religion from the state? Number 1, to function democratically. Democratic country का एक key feature है equality. India is a democratic country. Equality is a key feature. तो all the religions are equal in India. Now assume करिए, सोचिए, if one religious group get the power of state, देन वॉट विल हैपन? क्या होगा? किसी जैसे यहाँ पे जो भी डोमिनेट कर सकता है, हिंदू है, मुस्लिम है, बोथ आर इक्वल, कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है. किसी भी एक ग्रुप को सपोर्ट मिल जाता है स्टेट का तो क्या होगा? देखिए, ठीक है, इफ वन ग्रुप एक्सेस टू द स्टेट पावर, तो क्या हो सकता है?
they could use this power to dominate the other religious group or prevent the other religious group to do their religious practices, कि उनको religious practices भी नहीं करने देना, ये हो सकता है. एंड ऑल दीज थिंग्स अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अपोजिट हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. क्लियर. नाउ सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स. This is the duty of the state to protect the fundamental rights of the people, because constitution gives the fundamental right to equality and right to freedom to religion. Freedom of religion is given from our constitution, and everybody is free to exit from their religion and embrace any religion. Means अपने religion को अगर वो छोड़ के दूसरा भी adopt करना चाहता है तो he or she is free to do. बट नोबडी कैन कंपेल देम, उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसकी अपनी विश है तो वो चेंज कर सकता है. लेकिन चेंज कब करेगा? जब ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई इंफीरियर सुपीरियर नहीं है. दैट्स व्हाई वी कैन से टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट इट्स इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ताकि वो कोई भी आदमी अपना रिलीजन चेंज कर सके, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके और अपने रिलीजन के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सके. चलो ठीक है. नाउ द थर्ड, टू प्रिजर्व इंडियाज यूनिटी. इट्स सो इम्पॉर्टेंट. वी नो दैट इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. So many religious groups are living in India and they have the different culture, tradition and language. Means everything is different and this difference is a threat of India's unity. ये एक इंडिया की यूनिटी के लिए जैसा कहना चाहिए ना, एक बहुत अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि सब अपने अलग अलग है. बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव द इक्वल राइट्स टू ईच एंड एवरी रिलीजन. That's create a harmonious situation and condition that is good for India's unity. कोई एक रिलीजन ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तो इस वजह से ऑल आर इक्वल और हारमोनियस वे में दे लिव्स इन इंडिया, और हमारी इंडिया की यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं. ठीक है. एंड व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? What is Indian secularism? It means what are the objectives of Indian secularism? Number one religion, religious community does not dominate others. Means one religious community does not dominate the other religious community. क्योंकि we are living in a secular country, all religions are equal, so there is no question to dominate the one religious community to others. So this is the objective of Indian secularism, कि कोई भी एक religious community दूसरी को dominate ना कर पाए, whether they are in the majority, तब भी वो dominate नहीं कर पाएगी, because equal status is given to each religion. Number 2, some members do not dominate other members of the same religious community. इसका आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. हिंदुइज्म में बहुत पहले समय से ही जो अपर क्लास हिंदूज होते हैं, दे डिस्क्रिमिनेटेड द लोअर कास्ट हिंदूज, और इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिमोलिश द अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी को डिमोलिश कर दिया गया. द अनटचेबिलिटी इज नाउ इलीगल. अब ये इलीगल है. अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी यू विल बी बिहाइंड द बार, आपको जेल भी हो सकती है. ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया. एंड द थर्ड, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन. स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए फोर्स नहीं कर सकती, बिकॉज देयर इज नो स्टेट रिलीजन. स्टेट का तो कोई रिलीजन ही नहीं है. ठीक है, तो वो किसी भी रिलीजन के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकती है, और नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. और जो इंडिविजुअल्स के लिए एक फ्रीडम मिली हुई है, रिलीजियस फ्रीडम, कि यू कैन लिव विद योर रिलीजन. आप अपने रिलीजन के साथ रह सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डअप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं. वो जो आपकी लिबर्टी है उसको भी वॉयलेट नहीं कर सकती है, और इन केस करती है तो यू आर फ्री टू मूव टू द कोर्ट. क्लियर?
सो इस वाले फर्स्ट पार्ट में हम बेटा इतना ही करेंगे और ध्यान से एक बार सुन लीजिए, और अगर आपको समझ में आया है बच्चे धीरे से तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। एक बार सम अप कर लेते हैं। दीज आर द डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पीपल ऑन द रिलीजियस बैकग्राउंड। तो क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन निकला रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अगर हम दोनों को सेपरेट कर देंगे तो कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट नहीं कर सकती। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? नंबर 1, टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। तभी हमारी कंट्री डेमोक्रेटिकली काम कर सकती है जब हम रिलीजन को सेपरेट कर देंगे स्टेट से। क्लियर? समझ में आ गया आपको? एंड नंबर 2, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। इसके लिए भी जरूरी है टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट एंड टू प्रिजर्व द इंडियाज यूनिटी। क्लियर? एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्युलरिज्म? One religious community does not dominate others. Number 2, some members do not dominate other members of the same religious community. And third, the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals. Clear? तो हम इतना ही करेंगे बच्चे। समझ में आया है? देन लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।